Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome you all in the 7th lecture of Biology Practical. Today we are going to discuss part B of activity number 2. एक्टिविटी नंबर 2 का हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लीव्स, स्टेम, roots and external morphology of mustard plant. Today we are going to discuss the cross section of brassica flower. कल हमने डिस्कस किया था ब्रासिका फ्लावर और ब्रासिका कंपेस्ट्रस फ्लावर के रूट्स को, स्टेम को और लीव्स को। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रासिका कंपेस्ट्रस के फ्लावर को डिटेल से और हम फ्लावर के हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रासिका कंपेस्ट्रस की फ्लावर की। This is the flower of Brassica campestris. This is your activity number 2. What is flower? Flower is a reproductive organ. Flower is the reproductive organ of a plant. A flower is made up of specialized leaves which are present in the swollen tip called the receptacles. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम ब्रासिका कंपेस्ट्रस के फ्लावर को ले ले, फ्लावर ऑफ ब्रासिका कंपेस्ट्रस इज स्मॉल, येलो इन कलर, वेरी अट्रैक्टिव। व्हाई? फॉर पोलिनेशन, एंड they have inflorescence in the form of clusters. So it means that the flowers are very small and they are present in the form of clusters in groups. The flowers are present in clusters. Clusters mean in groups. So it's mean that the flower of Brassica campestris is yellow in color, small flower, very attractive to attract the insects for pollination, and they have yellow color and inflorescence, and the flowers are present in the form of clusters or groups. This is all about the flower of Brassica campestris. Now going towards the floral leaves, the flower is present on the stalk. Now going towards the parts of the flower, we are going to discuss the stalk of the flower. The flower is present on the stalk, and that stalk is known as the pedicel. The stalk of the flower is known as the pedicel. The second one is the thalamus part. Pedicle is the stalk of the flower. याद रखिए, what is the stalk of the flower? Pedicel is the stalk of the flower. The next one we have the thalamus. Now what is mean by the thalamus? That flattened part. The flattened part after pedicel is known as the thalamus. The flattened part after pedicel is known as the thalamus. उसको हम नेम देते हैं किस चीज का? Thalamus का. The next one we have the floral leaves. The floral leaves are arranged in 4 halls on thalamus. Thalamus पे जो 4 halls of leaves होते हैं, that are known as the floral leaves. और इसको हम नेम देते हैं, बेसिकली जब हायर लेवल पे हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जब हम कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में पढ़ते हैं, हम कहते हैं दीज आर नोन एज द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक. हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि फ्लावर पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4 concentric holes or rings. Moving towards the parts of the flower, the different 4 parts of the flower. The first one we have the calyx. The first one part we have the calyx. Now what is calyx? Calyx the outermost hole. हम इसको कहते हैं, एक को हम कहते हैं sepal. और collectively all the sepals collectively together are known as the calyx. Sepals जब collective हो जाते हैं, then we are called it calyx. The collective form of sepals are known as the calyx. Calyx is the outermost hole.
फंक्शन कैलिक्स का क्या होता है? सो कैलिक्स यूजुअली प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। कैलिक्स क्या करता है? वो फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है इन बर्ड कंडीशन। आप लोगों ने बर्ड कंडीशन में होगा, फ्लावर ग्रीन कलर की लीव्स में बंद होता है, सो दैट लीव्स आर नोन एज द सेपल्स। एक एक को हम अगर नेम देते हैं सो देन दीज आर नोन एज द सेपल्स, लेकिन कलेक्टिवली उसका नेम हमारे पास होता है कैलिक्स। सो कैलिक्स को आप लोग ये भी सिंपल कह सकते हैं कि इट इज द आउटर मोस्ट होल। सबसे पहले सेपल्स जो होते हैं दैट आर ग्रीन इन कलर। फ्लावर के ओपन होने से पहले और ओपन होने के बाद दीज आर ग्रीन इन कलर, नॉर्मली दीज आर ग्रीन इन कलर, बट व्हेन द फ्लावर इज इन मैच्योर फॉर्म, फ्लावर्स जब मैच्योर हो जाता है देन इट बिकम येलो इन कलर, फिर हमारे पास ये कलर में आ जाते हैं, येलो कलर में, एंड दीज कलेक्टिवली आर नोन एज द कैलिक्स। अगर हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की बात कर ले, सो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कंटेन्स 4 सेपल्स। It consists of 4 sepals. याद रखिए, Brassica campestris consists of 4 sepals. Sepals collectively called as calyx. Sepals are collectively known as the calyx. Now moving towards the second part, corolla. Corolla, this is the corolla part. ये जो आपको येलो पेटल्स नजर आ रहे हैं, सो दिस इज नोन एज द corolla part. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमें फ्लावर्स में कलरफुल लीव्स नजर आते हैं, these are known as the petals. ये जो कलरफुल लीव्स हमारे पास होते हैं these are known as the petals. उसको हम नेम देते हैं पेटल्स का, और कलेक्टिवली हम पेटल्स को जिस तरह हम कलेक्टिवली सेपल्स को नेम देते हैं कैलिक्स, सेम कंडीशन हेयर हम पेटल्स को कलेक्टिवली नेम देते हैं कोरोला का। सो हेयर कोरोला इट इज द सेकेंड होल, हमारे पास ये सेकेंड होल होता है। एंड अगर हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की बात करें, ये तो फ्लावर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फ्लावर्स में पेटल्स की जो अमाउंट होती है वो किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन मेनली इन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वी हैव द 4 पेटल्स। In Brassica campestris we have the 4 petals and these are usually yellow in color. The petals of Brassica campestris are yellow in color. What is the function of petals? So the function of petals is to attract insects. Why to attract insects? So petals attract the insects for pollination. For pollination means the transfer of pollen grains from anther to stigma, or from the male part to the female part is known as the pollination. और ये पेटल्स जब कलरफुल होते हैं तो उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं देन इट मूव टुवर्ड्स द फ्लावर, और जब फ्लावर की तरफ ये मूव करते हैं सो दे कैरी करते हैं pollen grains को from anther to stigma and pollination takes place. So this is the main functions of the petals. So याद रखिए, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, the second hole of the Brassica campestris is known as the corolla. They have 4 petals, mainly Brassica campestris have 4 petals, yellow in color, and the main function of the petal is to attract insect for pollination, and all the petals are collectively known as the corolla part. Now moving towards the third part, which is androecium. Now what is meant by androecium? So androecium is the third hole. Androecium हमारे पास कौन सा होल होता है? It is the third hole. हम मेनली जो एंड्रोशियम को नेम देते हैं, सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। याद रखिए, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। जिस तरह हमने कैलिक्स और करोला में बात की कि कैलिक्स में हमारे पास सेपल्स होते हैं, करोला में हमारे पास पेटल्स होते हैं, सेम कंडीशन हेयर कि एंड्रोशियम में हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं दीज आर नोन एज द स्टेमन। एंड्रोशियम में जो पार्ट्स होते हैं दीज आर नोन एज द स्टेमन्स, एंड स्टेमन्स कलेक्टिवली नोन एज द एंड्रोशियम, एंड दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। एंड एंड्रोशियम contains 6 stamens. In Brassica campestris, the androecium contains about 6 stamens. Now this is the diagram of androecium male part. जिस तरह आपको मैंने बता दिया कि it is the stamen and the stamens are collectively known as the androecium. Male part होता है, stamen is divided into 2 parts. The first one is known as the filament and the second one is known as the anther.
फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ द स्टेमन। फिलामेंट हमारे पास स्टॉक होता है स्टेमन का। द नेक्स्ट वन वी हैव द एंथर। एंथर टू लोब्स, आपको नजर भी आ रहा होगा, टू लोब्स आपको नजर आ रहे हैं। सो द टू लोब्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ईच स्टेमन, एट द टिप ऑफ द फिलामेंट इज नोन एज द एंथर। Each lobes contains pollen sacs। इस lobes के अंदर हमारे पास pollen sacs होते हैं और फिर इन pollen sacs के अंदर हमारे पास होते हैं pollen grains, and these pollen grains move towards the carpel or gynoecium and the pollination takes place। दोबारा बता देती हूँ एंड्रोशियम के बारे में। The third whole एंड्रोशियम contains the male reproductive structure called stamen। Each stamen consists of an anther and filament. The anther contains the pollen sacs which produce spores, and these spores or pollen grains are known as the microspores. Now the filament, what is the function of filament? So the stalk-like filaments support the anther। ये फिलामेंट क्या करता है? ये फिलामेंट इस एंथर को सपोर्ट करता है, या इस होल को हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की टू पार्ट्स, फिलामेंट, एंथर। फिलामेंट इज द सपोर्टिंग ऑर्गन एंड एंथर कंटेन्स द टू लोब्स। ईच लोब कंटेन्स द pollen sacs and the pollen sacs produce the pollen grains, and these pollen grains move towards the carpel and the pollination takes place। Now this is all about the male reproductive organ or about the androecium। Now moving towards the carpel or gynoecium। So this is carpel, ये आपको नजर आ रहा होगा। This is known as the carpel। carpel हमारे पास जो पार्ट होता है, जिस तरह हमने इसके पार्ट्स को कहा था एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या एंथर और फिलामेंट के पार्ट को हमने कहा था एंड्रोशियम। पेटल्स को हमने कहा था कोरोला, सेपल्स को हमने कहा था कैलिक्स। सेम हेयर जो कार्पेल्स होते हैं, तो कार्पेल्स के होल पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम इज आल्सो नोन एज द, गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? पिस्टल्स भी कहते हैं। गाइनोशियम या पिस्टल इज द सेकेंड नेम एंड इट इज द फोर्थ होल। ये हमारे पास कौन सा होल होता है? फोर्थ होल। ईच फ्लावर, जो फ्लावर्स होते हैं उनके डिफरेंट कार्पेल्स होते हैं। नंबर ऑफ कार्पेल्स जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कंसिस्ट ऑफ टू कार्पेल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन्ड बाय गाइनोशियम, सो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, and Brassica campestris consist of the two carpels are the carpels collectively known as the gynoecium। उसको हम क्या कहते हैं? gynoecium, and it is the female reproductive organ। now अगर हम division ले लें, so gynoecium is divided, or carpel is divided into three parts: stigma, style, ovary। stigma tip, style stalk, ovary ovule। अब डायग्राम में आप लोगों को मैं डिटेल से बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख ले। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एट द टॉप स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? द स्वोलन टिप ऑफ द स्टाइल इज नोन एज द स्टिग्मा। स्टाइल क्या होता है? ये हमारे पास ओवरी के और स्टिग्मा के बीच में जो स्टॉक होता है, जो इन दो को कनेक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज द स्टाइल। स्टाइल को आप लोग सिंपल एक ट्यूब भी कह सकते हैं कि ये ट्यूब कनेक्शन करता है स्टिग्मा और ओवरी के बीच में। स्टिग्मा होता है स्टिकी। जब pollen grains from the stamen or from the male reproductive organ or from androecium आते हैं, तो यहाँ पे with the help of insects और insects at the tip of the stigma बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे जो pollen grains होते हैं वो स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं। आफ्टर दैट जो स्टाइल होता है वो pollen grains ये स्टाइल या ये ट्यूब हेल्प करता है उसको ओवरी तक पहुँचाने में। इसके बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं इन द ओवरी। नो व्हाट इज ओवरी? सो ओवरी इज द स्वोलन पार्ट एट द बेस ऑफ द गाइनोशियम, एंड दिस ओवरी हियर द मेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ओवरी में पोलिनेशन या ओव्यूल्स बनते हैं।
यहाँ पे मेल पार्ट पोलन ग्रेन्स एंड द फीमेल पार्ट मेगास्पोर्स, जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर्स। यहाँ पे वो मेगास्पोर्स और यहाँ से जो माइक्रोस्पोर्स आए होते हैं या मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स आए होते हैं, तो वो यहाँ पे ओव्यूल्स में या ओवरी में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे ओवरी में कंबाइन होने के बाद यहाँ पे फिर सीड या फ्रूट्स बनते हैं। अगर हम और प्लांट्स को या फ्लावर्स को ले ले तो हम उनमें मेनली यही बात करते हैं कि यहाँ पे जो बनता है ओवरी और ओव्यूल में, तो यहाँ पे फ्रूट्स बनते हैं और इनसाइड द फ्रूट्स फिर हमारे पास सीड बनते हैं। एंड दिस ऑल इज़ द प्रोसेस ऑफ, जिसको हम नेम देते हैं पोलिनेशन का, नेम हम देते हैं बेसिकली पोलिनेशन का। सो दिस स्वोलन बेस जो होता है हमारे पास ये ओवरी होती है और इसके अंदर जो जिसने कंबाइन होना होता है विथ स्पोर्स आर पोलन ग्रेन्स, दीज आर नोन एज द ओव्यूल, उसको हम नेम देते हैं ओव्यूल का। सो दीज आर द ओव्यूल जिसमें हमें पार्ट्स नज़र आ रहे हैं एंड दिस ऑल इज कलेक्टिवली नोन एज द ओवरी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस होल गाइनोशियम, दिस इज द फीमेल पार्ट। एक एक करके हम कहते हैं कार्पिल, two carpels in the Brassica campestris. The carpels are collectively known as the gynoecium part or pistil part or female reproductive part. It is divided into three parts: stigma, style, ovary. Stigma is the tip of the carpel which is sticky. और जब इंसेक्ट्स आते हैं तो उसके साथ पोलन ग्रेन्स स्टिक होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द स्टाइल। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को बीच में कनेक्ट करता है और वो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा लेके आता है टूवर्ड्स द ओवरी। ओवरी में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आके ओव्यूल के साथ या मेगास्पोर्स के साथ या फीमेल पार्ट्स के साथ कंबाइन होते हैं और यहाँ पे वो हमारे पास बनाते हैं सीड्स और फ्रूट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। कल आप लोगों को मैंने इसी का डायग्राम बताया था, इसी प्रैक्टिकल में जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था फ्लावर का, इसके पार्ट ए में, तो वही डायग्राम आप लोगों ने बनाना है। आप लोगों ने इसके साथ दूसरा डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल नोटबुक्स में डायग्राम ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर आप लोग की मसला आता है पेजेस का। तो आप लोगों ने सिर्फ वही एक डायग्राम बनाना है, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सिंपल दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेम कंडीशन, मार्जिन लाइन्स। Activity number 2, study of external morphology of mustard plant and microscopic examination of the root, stem, leaf, flower, fruits and seeds. Practical name, margin lines, capital writing should be double underlined. Now on this page we have to draw the diagram. यहाँ पे इस पेज पे हमारे पास आ जाएगा डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास मार्जिन लाइन्स के बाद डायग्राम की हेडिंग, डायग्राम के बाद हेडिंग के बाद हम बनाएंगे डायग्राम शुड बी डार्क, डायग्राम हमारे पास डार्क होगी और साथ में शेडिंग कंप्लीट और फुल होगी। इसके बाद डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि कल ऑलरेडी आप लोगों को मैंने ये डायग्राम एक दफ़ा बताया है। यहाँ पे ऑन वन साइड लेबलिंग शुड बी कैपिटल, शुड बी डबल अंडरलाइन, बट द डायग्राम शुड बी विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पेंसिल। और यहाँ पे लास्ट में आप लोगों के पास आ जाएगा फ्लावर ऑफ ब्रासिका विद डबल अंडरलाइन एंड शुड बी कैपिटल राइटिंग। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। कंपैरिजन ऑफ डायग्राम कल भी आप लोगों को मैंने बताया था और आज दोबारा बता रही हूँ। जिस तरह आप लोग डायग्राम बनाते हो विद स्मॉल लेबलिंग, जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है, जिस तरह आप लोग स्मॉल लेबलिंग करते हो, पूरा डायग्राम बनाते हो, नो शेडिंग ऑफ डायग्राम, तो इस तरह की डायग्राम आप लोग की नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की डायग्राम मैंने बताया है सेम टू सेम इसी तरह का डायग्राम आप सबका होना चाहिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक अल्लाह हाफिज़।